Hello, everyone. I feel delighted in sharing with you that we have already hit the mark of 100 subscribers. And this not only makes me happy but also motivates me to strive for better and give you best content for acing your CLAT examination. So, in this lecture series of Law of Contracts, we have already completed that what are agreements, what is the difference between an agreement and a contract, how a contract can be formed, what are the essential elements of forming a valid contract, and in that series, we are continuing in today's lecture the next essential element, that is competent to contract. Have you ever wondered can just anyone sign a contract and make it legit? Well, not so easy. In this today's episode, we are breaking down the competency or capacity to contract. So you will know exactly who can make deals that actually stick. From minors to masterminds, let's see who gets the legal green light and who's about to hit a legal speed bump. So let's get ready and level up the contract game. So see, the first thing is competent to contract or capacity to contract, meaning who all are competent to enter into a contract. So from where do we get to know about this? We get to know about this from Section 11 of the Indian Contract Act. Section 11 says every person is competent to contract who is of the age of majority. So first point हमको यहाँ से क्या मिलता है? That who is of the age of majority according to the law. अभी हम आगे डिकोड करेंगे इसका क्या मीनिंग है. To which he is subject. Next is who is of sound mind. Second point मिलता है. And third is who is not disqualified by any law. So अगर हम इन तीनों चीज़ों को ब्रेक डाउन करें तो हमें पता चलता है द फर्स्ट इज दैट द पर्सन शुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, मीनिंग द पर्सन मस्ट बी अ मेजर. नेक्स्ट इज द पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. क्लियर. एंड द थर्ड इज द पर्सन मस्ट नॉट बी disqualified by any law of the land. Clear. So when we come to the age of majority that the person must be major, how do we get to know about what is the age of majority? So the Indian Majority Act of 1871 tells us the age of majority in two parts. First is 18 years. 18 years is the general rule. As we all know that anybody who is above the age of 18 years is considered as an adult, and anybody who is less than the age of 18 years is considered as a minor. However, in case where a court has appointed a legal guardian, then in that case the age of majority becomes 21 years. So these two things you have to keep in mind. So the first thing is that the person must be at least of the age of 18 years. तभी हम उसको major मानेंगे. Now in this sphere we have to study a very leading case law, that is मोहरी बीबी versus धर्मोदास घोष. अब इस केस में होता क्या है? धर्मोदास घोष इज अ माइनर, वो एक छोटा बच्चा होता है. ही मॉर्गेजेस हिज प्रॉपर्टी टू अ मनी लेंडर एंड टेक्स लोन. आफ्टरवर्ड्स जब उस मॉर्गेज को एग्जीक्यूट कराने की बारी आती है तो धर्मोदास घोष कहता है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तब आई एंटर्ड इनटू दिस अग्रीमेंट एंड आई मेड दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन आई वाज अ माइनर, सो आई एम नॉट बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. सो उस समय प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, जो आज के समय हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है. सो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का केस है. तो उसमें प्रिवी काउंसिल बोलती है दैट धर्मोदास घोष सिंस वॉज अ माइनर व्हेन ही एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट और ही मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, सो ही इज़ नॉट लाइबल. एंड उस जजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो. आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वॉइड एब इनिशियो जो लीगल मैक्सिम है उसका क्या मीनिंग होता है. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर बार माइनर ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा और फिर इजीली वो गेट अवे हो सकता है क्या? However, there are certain exceptions to it. अगर माइनर एक बेनिफिशियरी है कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जाने से माइनर को कुछ फर्दर फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तब वो वॉइड नहीं होगा. और अगर नेसेसिटी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स नेसेसिटी सप्लाई करी गई है माइनर को, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, अगर वो सप्लाई करी गई है माइनर को, तो भी माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल वैलिडिटी या लीगल लाइबिलिटी से
बाउंड होगा और वो उससे गेट अवे नहीं हो सकता. क्लियर? सो फर्स्ट थिंग वी हैव कंप्लीटेड दैट द पर्सन मस्ट बी मेजर. नेक्स्ट इज पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड. अब साउंड माइंड का क्या मतलब है? साउंड माइंड हम सेक्शन 12 अगर देखें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो सिंपल से ही बोलता है that at the time of making of contract the person must be capable, he must be capable of understanding the terms and conditions and the repercussions or the consequences of the act. अब मान लीजिए अगर कोई पर्सन जनरली साउंड माइंड का रहता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो पर्सन साउंड माइंड का है और यहाँ से यहाँ तक वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, and if the person has made a contract while he was of sound mind then the contract will be legal. बट अगर वो अपने अनसाउंड माइंड के जो सिनेरियो या टाइम फ्रेम है अगर उसमें वो एंटर करता है then it will not be valid. So the person must be capable of understanding the terms and conditions of the contract. Clear? और थर्ड पॉइंट है लास्ट कि पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो लॉ के द्वारा. अब कौन कौन से पर्सन डिस्क्वालीफाई कर सकता है लॉ उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से? वेरी सिंपल, एनिमी एलियन. मान लीजिए कल को इंडिया का किसी कंट्री से वॉर चल रहा है या हमारे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं हैं, तो उनके जो सिटीजन्स हैं या उनके जो रेजिडेंट्स हैं, लॉ अगर चाहे तो उनको बार कर सकता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट पर्सन्स. इंसॉल्वेंट पर्सन्स मतलब जो दिवालिया घोषित हो गए, जिनकी लाइबिलिटी उनके एसेट से ज़्यादा हो गई है, उनको भी कोर्ट रोक सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कैरी आउट और फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? और थर्ड है जैसे कन्विक्ट्स ऑफ अ सीरियस ऑफेंस. तो ऐसे लोगों को अगर कोर्ट चाहे तो एक्सप्लिसिटली डिस्क्वालीफाई कर सकता है लॉ से फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आपको समझ में आया. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन and stay tuned for the next video in which we'll discuss about the free consent. Please like, share and subscribe the channel, and also hit the bell icon so that you get notified about the new videos that are coming up. So thank you so much. Stay tuned for more.